میڈیا کے لوگ بس ایشو کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے الفاظ بھی نئے نہیں ہیں. تو خدا را یہ ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے، بین الاقوامی سازشیں آپ کے ارد گرد آپ کے اوپر نظریں تاک کر کھڑی ہیں. 3 کرائسس، 3 بحرانوں نے اس وقت پاکستان کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. سیکیورٹی کا بحران، سیاست کا بحران اور معیشت کا بحران، اور کوئی قومی یکجہتی نہیں، کوئی پالیسی نہیں. اقتدار کی طوالت ہی صرف ان کا ایک مقصد ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن بلوچستان میں سانحہ ہوتا ہے، اس کے اگلے دن وہاں کی حکومت کیا کرتی ہے؟ ایک نئے وزیر کا حلف لے لیتے ہیں. یہ کیا طور طریقے ہیں؟ یہ کیوں عوام کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کی جا رہی ہے؟ بہرحال خدا پاکستان کے دشمنوں کو غرق کرے، ہمیں آپس میں اتحاد قائم رکھنے کی توفیق دے اور وہ دانشمندی دے کہ ہم مل کر ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکیں. ایک بس استدعا ہے کہ کل کا دن 8 فروری عوام کی تصدیق کا دن ہے. آپ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. ہم کوئی معنی نہیں رکھتے، ہم آپ کے فیصلے کے پابند ہیں، لیکن اس ملک میں لوگ آپ کے فیصلے کے پابند نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے فیصلے سے بالاتر ہیں. ہم نے آپ کی اس حق کی پروٹیکشن کے لیے کل کے دن آپ ہی سے اپیل کی ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے، جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس میں آپ کی مرضی اور منشا شامل نہیں ہے. اپنے گھروں میں بیٹھیے، باہر مت نکلیے، اور یہ جو سانحہ پر سانحہ ہوتے گئے ہیں، کل کے دن کو ایک یوم سوگ کے طور پر منائیے اپنے اور اپنے اہل عیال کے ساتھ، اور اس پر غور کریے کہ اس ملک کو ہم نے ان بحرانوں سے کیسے نکالنا ہے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی بھائیوں بہنوں کی بڑی مہربانی، یہ حادثات ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو جذباتی کریں. میرے ساتھیوں نے جو کچھ کہا ان سب کو سپورٹ کرتے ہوئے میں اس میں یہ اضافہ کروں گا، ہم اپنے بوئے ہوئے فصل کی کٹائی کر رہے ہیں. پاکستان کو ہم نے دہائیوں پہلے دوسروں کی جنگوں میں جھونک دیا. ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کو یہاں جمع کیا. روس کی فوجیں جب افغانستان آئی تھی، ہم نے تمام دنیا کے لوگوں کو، عرب، عجم، اسرائیلی، یعنی کوئی نہیں، تمام براعظموں میں سے نہ کوئی مذہب باقی رہا، نہ کوئی ملک باقی رہا جس کے لوگ یہاں نہیں پہنچے. ہم نے اپنے قبائلی علاقوں میں چچن، ازبک، تاجک، دنیا جہاں کے قاتلوں کو جمع کیا. قبائلی علاقوں میں ایک فائر سے 1300 سے زیادہ سماجی شخصیات کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اس میں انہوں میں عالم دین بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، سینیٹرز بھی تھے، عام انسان بھی تھے. یہاں ہم اسی فصل کو کاٹ رہے ہیں. ہم نے دہشت گردوں کو یہاں پالا. کل جاز الحق نے کم سے کم یہ مہربانی کی کہ جی ہم نے ایک سپر طاقت کو 10 لاکھ افغانوں کی شہادت کے نتیجے میں شکست دی. تو نتیجہ بھی بک دو. یہ بلائیں کیا یہ ایسی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ عالم دین کڑا ہے. آیت الکرسی میں ایک آیت ہے، لا اکراہ فی الدین. حکم ہے مسلمان کو کہ کسی کے ساتھ بھی دین کے بارے میں اپنے جبر نہیں کرنا. انسان آزاد ہے، وہ خدا کو مانے یا نہ مانے. تم پولیس افسر نہیں ہو. وہ خدا ایون اپنے پیغمبروں کو کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ یہ ہے تبلیغ کریں، لوگوں کو اچھے اعمال کے نتائج بتائیں، برے اعمال کے نتیجے سے ڈرائیں. باقی یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ ان کو بائی فورس عقیدہ دیں. وما علینا الا البلاغ. بات یہ ہے
पाकिस्तान मुश्किल में है हमारे अपने करतूतों की वजह से, हमारे अपने अमाल की वजह से, हमारे अपने जो कुछ हमने किया उसमें हमारी अफवाज शामिल हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, अब तो अदलिया भी शामिल हो गई। सब लोग 25 करोड़ इंसानों को, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, 25 करोड़ इंसानों को कल के दिन इलेक्शन में बंदूक की जोर पे हरासा किया गया, दहशत ज़दा किया गया। जो उन्होंने फैसला किया था कि ये फैसला नहीं है, ये फैसला है, भुगतो बलूचिस्तान में, कोयटा शहर में, मुकरान में, खारान में घंटों लोग फिर रहे थे। ये आपके 2 नंबर लोग कहाँ थे? कोई निकला, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा, किसी ने किसी को रिक्वेस्ट की। इस तरह की हुक्मरानी करोगे, नतीजा ये होगा। तौबा करें, हम ना फौजियों के खिलाफ हैं, ना एजेंसियों के खिलाफ हैं। मेहरबानी करें, आइन अपने आइन को फारिग कर दिया। क्या रिश्ता है हमारे दरमियान? ये आदमी कोकर है, पिंडी का रहने वाला है, मैं वो चमन के बॉर्डर का रहने वाला हूँ, ये शरीफ आदमी पंजाब का है, ये आदमी कहाँ का है? जो चीज़ हमें इकट्ठा रखे हुए है उसको आप फाड़ रहे हैं, उसको आप फाड़ रहे हैं। कोई घर नहीं चल सकता। मैं बार बार ये घिसे हुए पिक्चर इस्तेमाल करता हूँ। बेइंसाफ़ी से घर नहीं चलता, बेइंसाफ़ी से शादी नहीं चलती, बेइंसाफ़ी से बाप और बेटे का रिश्ता नहीं चलता। अब बेइंसाफ़ी से मुल्क चलाएंगे और वो करेंगे। अल्लामा साहब ने यहाँ कहा कि इन्होंने शोदा के लिए वो कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया। अल्लामा साहब कंपनसेशन भी वो मजाक कर रहे हैं। जो आदमी वफादारियाँ बेचता है एक टिक के निशान पे, उसे 90 करोड़ मिलता है। जो दहशतगर्दी में मिलता है उसको 1 करोड़। लाख वो तुम्हारी इंसाफ पे, लाख वो तुम्हारी उस कंपनसेशन पे। वफादारियाँ बेचने वाले के लिए 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़। और गरीब आदमी मरता है, एक घर बर्बाद होता है, सैकड़ों घर बर्बाद होते हैं। आप 30-40 लाख दे के वो करते हैं। ठीक है, होना चाहिए। रियासत, जिस तरह लोग कहते हैं रियासत माँ होती है, रियासत माँ की तरह होती है, वो बच्चों में वो नहीं करती। बच्चों, जो रियासत अपने बच्चों को नहीं पाल सकती उसे हुक्मरानी का हक नहीं है, उसे हुक्मरानी का हक नहीं है। कल हमारा दिन है, मैं अपील करता हूँ, बल्कि डिमांड करता हूँ हमारी पंजाब की पुलिस से, सिंध की पुलिस से कि आप किसी के तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं हैं। लोग इन बर्बादियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मत पड़ो उनके दरमियान, मत जोर करो उनके साथ। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग पंजाब में आप धकेल रहे हैं। किस लिए? वो क्या कर रहे हैं? आखिर हमने ना कोई पत्थर उठाया है, ना बंदूक उठाई है, ना हम किसी को लड़ना चाहते हैं, ना किसी को गाली देना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, गवादर से लेकर चमन तक, चमन से लेकर मिट्टी सिंध के बॉर्डर तक पाकिस्तान की आवाम ने अपने गुस्से का इजहार दुकानें बंद करने की सोच में करना है, ट्रैफिक बंद करना है। मैं तो इवन शाबाश से अपील करता हूँ, मत छेड़ो, कह दो तुम भी शामिल हो जाओ, तुम भी शामिल हो जाओ इस शोक में, तुम्हारी हुकूमत भी शामिल, मरियम भी शामिल हो जाए इस शोक में। ऐलान कर दे कि बिल्कुल जो ऐलान हुआ है, न ट्रैफिक चलेगा, न कुछ होगा। पाकिस्तान में एक किस्म की यकजहती आ जाएगी। रात को फिर मशरबरदार जुलूस होंगे। हम इस धमाके की मजम्मत करने के साथ साथ आवाम से अपील करते हैं, हमने जज्बाती नहीं होना। जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा, जालिम और मजलूम की जंग, जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की जंग चिढ़ चुकी है। हमने पहले से ऐलान कर दिया है, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जुल्म के खिलाफ हमने खड़ा होना है। जुल्म वाहिद चीज़ है मेरे भाई, जो तारीख में जुल्म वाहिद अंसर है जिसको आप जितना बर्दाश्त करते हैं वो ज़्यादा होता है। अगर कोई आपको धक्का दिया, कुछ ना कहें, थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ के बाद मुक्का होगा, उसके बाद डंडे होंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। हमने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, जालिम के खिलाफ खड़ा होना पैगम्बरों की सुन्नत है, बेहतरीन इंसानों की सुन्नत है, बहुत बहादुर जमहूरी लोगों इनकलाबियों की सूरत है कि आपने जालिम के मुकाबले में मजलूम का साथ देना है। हमारा मुल्क इंतहाई ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है, ये नहीं चला सकते।
अल्लाह गवाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमें ये नहीं है कि हम इक़्तिदार में जाएं और खुदा न खास्ता हम जाके वजीर बने। हम इस मुल्क, ये मुल्क डूब रहा है हमारी बदकारियों की वजह से, हमारी बदकारियों, बदकिरदारियों, रिश्वतखोरियों, बेइंसाफियों, लालच, जबर, किबर, तकब्बुर की वजह से ये मुल्क डूब रहा है। इसको हमने बचाना है, हम सबका मुल्क है। अब जिस पार्टी में है जिंदाबाद। अब तहरीक इंसाफ में है, सारे गाँव में इंसाफ की झंडी लगाओ। अगर अब जमात इस्लामी में है, सारे गाँवों में अपना झंडा लगाओ। अगर अब जमीयत उलमा इस्लाम में है, अपने गाँव इलाके में अपने झंडे लगाओ। लेकिन जुल्म के खिलाफ हमने मुतहद होना है। ये मौका है, उसकी इब्तिदा कल हम कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा है, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा है, पाकिस्तान की जर्नलिस्टों पे भरोसा है। कब हम निकलेंगे? अलिया के पर काट दिए गए हैं, पीका ऑर्डिनेंस जारी हो गया है, सच पे पाबंदी है, झूठ बोलना होगा। और एक बिल्कुल एक नया पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत पहले कहा था कि मुझे किरम खोरदा पाकिस्तान मिला है, कीड़ों का खाया हुआ, जिस लकड़ी को दीमक खोरदा पाकिस्तान मिला है। और मेरे जेब में जो सिक्के हैं वो सारे कोटे। ये बर्बादी इसलिए हो रही है कि 47 से लेकर अब तक वही खोटे सिक्के इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपील करूंगा सियासी पार्टियों से, तहरीक इंसाफ से, जो भी पार्टियां हमारी इत्यादी हैं, इन्होंने मुआहदा करना होगा, वादा करना होगा, इन लुटेरों को पार्टी में नहीं लेना होगा। इन लुटेरों को सियासत से फारिग कर देना चाहिए। 70 साल उन्होंने लूटा है, इसीलिए वो डूब रहा है। एटमी मुल्क टैंक बनाता है, जहाज बनाता है, बेहतरीन तोपे बनाता है, लेकिन खुदा न खास्ता हम, उसने शहबाज ने कहा था, हम मांगने लिखने मत मांगो शहबाज भाई, अपने अवाम पे भरोसा करो, अपने अवाम पे भरोसा करो। इस पार्लियामेंट को जिस पे कलमा लिखा है इसको मजबूत करो, इसको सही इलेक्शन से मुंतखब कराओ, इसी को खारिजा दाखिला पॉलिसियों का मरकज़ बनाओ। पाकिस्तान लेने वाला नहीं देने वाला मुल्क बन जाएगा, पुरअमन बेहतरीन मुल्क, A1 दुनिया जहाँ जो कुछ दुनिया की नामतें सूरह रहमान में बयान हुई हैं वो पाकिस्तान में है। फिर हम क्यों भीख मंगे हैं? 45% इंसान सुबह की रोटी के लिए परेशान है। दरमियानी तबका तो निकल गया मन से। ये आसमान वाले हैं, झूठे सर शोर बदमाश, 15 मंजिला बिल्डिंग बना लेंगे, न शर्म आती है, न खुदा से शर्माते हैं, न खुदा से शर्माते हैं। ऊपर लिख देंगे हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, झूठ, बेईमान लिखो। ये डाके का नतीजा है, ये रिश्वत का नतीजा है, ये बेईमानी का नतीजा है। तुम बेईमानियों से बड़े बड़े बिल्डिंग बनाओगे, तुम्हारे इस गुनाह के नतीजे में गरीब लोग मरेंगे और पाकिस्तान डूबेगा। हम किसी को पाकिस्तान डबोने नहीं देंगे, किसी को। हम पाकिस्तान किसी को डबोने नहीं देंगे। पाकिस्तान अवाम का है, अवाम की मर्जी से चलेगा, बेहतरीन आगे बढ़ा। गुड ताज़ियत के लिए आए बस। मैं यही बात कर रहा था। ताज़ियत के लिए अब अगला हफ्ता जो है आपका बड़ा अहम है, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होने जा रही है। क्या रोल होगा आपका? आप अपोजिशन लीडर हैं। शरीफ आदमी ने बयान दिया था कि अगर कोई हमारे पास आता है, इसे क्या बयान दिया था? पार्लिमानी रिवायात हैं और पार्लिमानी रिवायात के तसलसल में वज़ीर आज़म साहब या हुकूमती बेंचों से कोई अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आता है, अपोजिशन लीडर का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो पार्लियामेंट के सतून है। इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी हो, वो अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकती। इस बहरान से मौजूदा हुकूमत को निकालने के लिए जो कुछ हमारे बस में होगा हम देंगे। वो आए, ये कहे कि हम बहरान में हैं, आए निकालें इकट्ठे मिलकर। दहशतगर्दी के हवाले से मस्जिदों में अल्लामा साहब बहुत सारे मौलवी हज़रात जो हैं शिया सुन्नी फसादात को हवा देते हैं, इस तरह के सवालात करते हैं, तकफीरियों के नाम पे फतवे बांट रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ रियासत क्यों नहीं एक्शन ले रही? देखिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सब ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था, सबका पाकिस्तान है।